Assalamu alaikum. Good evening, dear medicos. I am Dr. Kaleem Raza. Today we are going to discuss about sternal angle. First we will discuss anatomy of the rib cage, that what is the difference between true, false and the flatting ribs. Then we will discuss the sternal angle, the clinical significance of the sternal angle. Then we will discuss the important procedure thoracocentesis and other important anatomical landmarks of the rib cage. So first of all we will discuss about the anatomy of the ribs, that how many pairs of the ribs total? 12 pairs of the ribs. And how many intercostal spaces? 11 intercostal spaces. So first 7 pairs of the ribs, these are called as true ribs. Why these are called as true ribs? Because they are attached. So what is the definition of the true ribs? The ribs which are directly attached to the body of the sternum, but with the help of the costal cartilage, these are called as true ribs. And then second is the false ribs. What do you mean by false ribs? 8th, 9th and 10th pairs of the ribs, 8th, 9th and 10th pairs of ribs. These ribs first attach to each other, then they are connected to the sternum with the help of the 7th costal cartilage. कि ये वो रिब्स हैं कि पहले आपस में जुड़ी हुई हैं, फिर 7th कोस्टल कार्टिलेज जो ऑलरेडी फिक्स है बॉडी ऑफ स्टर्नम, तो इसके साथ इसको क्या कहेंगे? फाल्स रिब्स. कौन से पेयर्स हैं? 8th, 9th एंड 10th. एंड देन लास्ट 2 पेयर्स आर कॉल्ड एज फ्लैटिंग रिब्स. व्हाई दीज आर कॉल्ड एज फ्लैटिंग रिब्स? बिकॉज दे आर हैविंग नो एंटीरियर अटैचमेंट, कि इनकी एंटीरियर कोई अटैचमेंट नहीं है, बट पोस्टीरियरली ऑल रिब्स आर अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ द which vertebra? Thoracic vertebra. So that's why nature have gifted you 12 thoracic vertebra. And how many pairs of the ribs? 12 pair of the rib. कि 12 रिब्स हैं, पेयर्स हैं, और थोरासिक वर्टिब्रा कितने हैं? 12 ही हैं. सारी रिब्स पीछे किसके साथ लगी हुई है? बॉडी ऑफ द थोरासिक वर्टिब्रा. ओके, गुड. नेक्स्ट, this bone is called a sternum. This is basically manubrium of the sternum. This is body of the sternum. This is E5 process. Sternum is very important bone and also a center for the red hematopoietic center. रेड ब्लड सेल्स की सिंथेसिस इसमें होती है. तो अगर किसी को भी बोन मैरो कैंसर होगा, ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर होगा, सो बॉडी ऑफ द स्टर्नम दिस इज द बेस्ट साइट फॉर द बोन मैरो बायोप्सी. ये एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है, दैट व्हाट इज द बेस्ट साइट फॉर द मैरो बायोप्सी. सो बेस्ट साइट फॉर द बोन मैरो बायोप्सी इज द body of the sternum. Okay, you know that when we are talking about the joints in our last lecture, I have told you that this is a midline joint. ऐसा ही है ना, manubrium sternum और G4 sternal भी. So midline joint, which type of joint is? Secondary cartilaginous joint. जो midline में होंगे वो secondary cartilaginous joint होंगे. Okay, the joint of the manubrium with the body of the sternum, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ लुईस और स्टर्नल एंगल. इसको क्या कहेंगे? स्टर्नल एंगल. इसको क्या कहेंगे? स्टर्नल एंगल. सो स्टर्नल एंगल प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ विच कोस्टल कार्टिलेज? स्टर्नल एंगल. विच कोस्टल कार्टिलेज? Second costal cartilage. First point, write it down please. The sternal angle present at the level of second costal cartilage. ये आप लोग देख सकते हैं. This one is the first and this one is the second costal cartilage. Okay, first point, that sternal angle present at the level of second costal cartilage. Then write please that this sternal angle present in front of 4th and 5th thoracic intervertebral disc. के जो T4 होता है ना प्लस T5 कि जो 4th और 5th thoracic vertebra होता है, इनके दरमियान जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, दिस इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इसके सामने स्टर्नल एंगल पड़ा होता है. तो स्टर्नल एंगल के पीछे कौन सी इंटरवर्टिब्रल डिस्क पड़ी हुई है? T4 और T5 की. गुड. देन थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द स्टर्नल एंगल, ये आप लोगों ने लिखना है कि जो आपका ट्रैकिया होता है मेजर रेस्पिरेटरी पार्ट से, ट्रैकिया. ओके, ये देखिए आप लोग, दिस इज basically trachea. So trachea bifurcate into right and left bronchus. अब ये जो बाइफुर्केशन है डिवीन हो रही है ना ट्रैकिया की, ये कहाँ पे हो रही है?
just behind the sternal angle. So bifurcation or dwin of the trachea takes place behind the sternal angle. एक और पॉइंट, और याद रखना है कि ब्रोंकस जो होते हैं, बड़ा ब्रोंकस कौन सा होता है? राइट ब्रोंकस. राइट वन इज द वाइडर शॉर्टर, जो नैरो है वो कौन सा है? लेफ्ट ब्रोंकस है. इसलिए कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर जाएगा तो एग्जाम में अगर पूछा जाए तो वो मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पे जा सकता है? राइट लंग में जा सकता है. ओके, इसके बाद जो स्टर्नल एंगल का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी तक कितने पॉइंट हुए? 3. चौथा पॉइंट आपने ये लिखना है, द स्टर्नल एंगल इज अ एंगल. यहां पे देखें ये क्या है? असेंडिंग एओर्टा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट हुआ है, आगे ये क्या बन जाता है? आर्च में चेंज हो जाता है, ऐसा ही है ना. फिर डिसेंडिंग एओर्टा. तो याद रखना है दैट स्टर्नल एंगल इज अ एंगल वेयर योर ascending aorta change to the arch of the aorta and arch of the aorta change to the descending thoracic aorta. वेरी सिंपल, कि जहां पे ascending aorta arch में तब्दील हो जाता है और arch किस में तब्दील हो जाती है? descending aorta में. So last point relating to the sternal angle is that this is a junction of the superior and inferior mediastinum. I have told you कि inferior mediastinum further divide हो जाती है किसमें? एंटीरियर मिडिल और पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में. और याद रखना है हार्ट कहाँ पे होता है, या ये जो होता है मिडिल मीडियास्टिनम में होता है. ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं. और जो सुपीरियर मीडियास्टिनम है वो बेसिकली कहाँ तक आएगी? स्टर्नल एंगल तक. इससे नीचे अप टू डायफ्राम ये कौन सी मीडियास्टिनम होगी? इंफीरियर मीडियास्टिनम. तो जो बॉर्डर है बिटवीन सुपीरियर और इंफीरियर मीडियास्टिनम, दैट इज बेसिकली द स्टर्नल एंगल. ओके, when we are talking about the intercostal space, remember please that each intercostal space having its own artery, vein and nerve. While performing the thoracocentesis procedure, अगर आपको प्लूरल एफ्यूजन है तो आपने अगर प्लूरल फ्लूइड लेना है, सो एग्जाम में पूछते हैं ड्यूरिंग thoracocentesis और प्लूरल टैप आपने नीडल इंसर्ट करनी है, इंपॉर्टेंट क्लिनिकल प्रोसीजर है. तो आप लोग कहां से नीडल को अंदर लेके जाएंगे थोरैसिक कैविटी में? टू द अपर बॉर्डर ऑफ द रिब और लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब? अपर बॉर्डर ऑफ द रिब. यू कैन सी हियर. सो ऑलवेज कीप द नीडल टू द अपर बॉर्डर ऑफ द रिब एंड लोअर बॉर्डर ऑफ द स्पेस. ये नजर आ रहा है ना, ये स्पेस का लोअर बॉर्डर है, रिब का कौन सा बॉर्डर है? अपर बॉर्डर. अपर बॉर्डर ऑफ रिब पे रखना है. लोअर बॉर्डर ऑफ रिब पे क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि वहां पे वेसल्स की अटैचमेंट होती है, कि जो लोअर बॉर्डर ऑफ रिब है वहां पे इंटरकोस्टल आर्टरी, वेन और नर्व अटैच होती है. अगर वहां से जाओगे तो आप उसको डैमेज कर सकते हैं. सो ऑलवेज कीप द नीडल ड्यूरिंग thoracocentesis प्रोसीजर टू द अपर बॉर्डर ऑफ द रिब एंड लोअर बॉर्डर ऑफ द स्पेस. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. तो ये था स्टर्नल एंगल और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस द नी जॉइंट. टिल देन अल्लाह हाफिज.